CAT 2023 slot 1 LRDI. Puzzle 3 we're going to do today. It says a visa processing office VPO है जहां पर वीजा एप्लीकेशन 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर प्रोसेस की जाती हैं, यूएस, यूके, शेनिगन एंड अदर्स। एप्लीकेशन जो स्केड्यूल्ड है 20 स्लॉट्स है 15-15 मिनट के, स्टार्टिंग एट 9 AM and ending at 2 PM. The 10 applications are scheduled in each slot. So as I always say, whatever information we got, let's start jotting it down, let's start writing it down. ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो है, मेरे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है यूएस से, एक है यूके, देन वी हैव शेनिगन एंड देन वी हैव अदर कैटेगरी। तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हो गई हमारे पास, 4 डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, सॉरी। और ये भी बताया गया कि 15-15 मिनट के 20 स्लॉट्स हैं। सो व्हाट आई कैन से, आई कैन जस्ट राइट इट साइड बाय साइड कि देयर आर 15 मिनट्स का स्लॉट, 20 स्लॉट्स होने वाले हैं, एंड इन एवरी स्लॉट आई गोना हैव 10 applications. 20 slots, 10 applications we're gonna have. That is going to be in per slot. And slot का जो टाइम इंटरवल है that is 15 minutes each. तो जो जो मुझे पता चल रहा है that is what I'm gonna write. So this is done. अब ये कहते हैं there are 10 counters in the office, 4 dedicated to US applicants. तो 4 counters हैं US applicants के लिए. Then they have 2 each for UK, Shanigan and others. So 2 UK वालों के लिए हो गए, 2 counters हो गए Shanigan वालों के लिए, 2 counters हो गए others applications के लिए. Now they say applications are called in for processing sequentially on a first come first serve basis. तो first come first serve basis पे आप application सबको entertain करोगे counters के ऊपर. Whenever a counter gets freed in their category, तो अपनी category में ही जाना है. The processing time for each application is same within each category. तो यूएस वालों में अगर एक एप्लीकेशन पे फॉर एग्जांपल x मिनट्स लगते हैं तो हर एक एप्लीकेशन पे x ही लगने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ, okay, but it may vary across the categories. Now each US and UK application require 10 minutes. तो यूएस वाली जो एप्लीकेशन है वहां लगते हैं हर एक एप्लीकेशन को ओनली 10 मिनट्स. तो वी हैव ओनली 10 मिनट्स पर एप्लीकेशन. That is for US. And then they say UK को भी 10 ही लगते हैं, तो let's write 10 minutes here also. यहां भी हर एक एप्लीकेशन को 10 मिनट लगने वाले. And then they say, बाकी दो का नहीं बताया इन्होंने आपको. Depending on the number of application category and the time required to process an application in that category, it is possible that an applicant for a slot may be processed later. मतलब हो सकता है पहले स्लॉट में बच्चा आया हो एप्लीकेशन लगवाने, सेकंड स्लॉट में उसको लेकिन एप्लीकेशन के लिए बुलाया जा रहा है. दैट इज ओके. पहले दोनों पैराग्राफ डन. आई डोंट नीड टू रीड इट अगेन. एज आई ऑलवेज से हमें टाइम बचाना होता है, तो इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ लिया उसको लिख लिया. ठीक है जी. नाउ लेट्स गो फर्दर. On a particular day, Ira, Vijay and Nandini, they were scheduled for Shanigan visa. तो Shanigan वीजा के लिए 3 लोग हैं. दे आर Ira, Vijay and Nandini. So let's write here Shanigan visa के लिए we have Ira, we have Vijay and we have Nandini. ये 3 लोग आने वाले. Now they say they had a 9:15 AM का slot but they came at 9:20. तो इनका जो slot था वो था तो 9:15 का, but आए 5 मिनट लेट. तो at what time they have come? They were scheduled for 9:15. But they did not come at this time. They came at 9:20. Now next they say, and they entered the office exactly 6 out of 10 counters. या तो वो प्रोसेस कर रहे थे एप्लीकेशन या वो फिनिश कर चुके थे एंड रेडी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग द नेक्स्ट, और रेडी थे नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए. तो 6 काउंटर्स आपके एट 9:20 out of 10, 6 counters were busy. Now the next information which we have, तो 9:20 पे 6 काउंटर बिजी हैं. हम ये भी लिख सकते हैं at this time at 9:20 we have 6 counters which were busy. तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा लिखते रहो ताकि आपको पता हो कि मुझे यहां से कोई ना कोई हिंट निकालना है. Now this is also done. Then they say Mahira and Usman were scheduled in 9:30 AM slot on that day.
फॉर वीजा प्रोसेसिंग इन अदर कैटेगरी। अदर कैटेगरी के अंदर दो लोग आने हैं, दे आर महिरा एंड उस्मान। सो अदर कैटेगरी भी लिख लेते हैं। सो वी हैव अदर कैटेगरी, उसमें आना है महिरा को और उस्मान को। नाउ लेट्स से फर्दर, ये लाइन भी हो गई। अब 9:30 आना चाहिए था इनको, सो दैट मींस ये अदर कैटेगरी जो गिवन है मुझे, लेट्स जस्ट पुल इट अ बिट अबव, थोड़ा ऊपर पुल कर लेते हैं इसको। ओके, नाउ दे से ऑल स्लॉट्स वर फुल। महिरा एंड उस्मान ये 9:30 वाले स्लॉट पे आना है इनको। तो लेट्स राइट इट डाउन कि यहाँ पे 9:30 पे आना चाहते हैं ये लोग। So they wanted to come at 9:30, उनका स्लॉट था। Now they say the following information is known about that day। अब और इंफॉर्मेशन भी नोन है, तो उस पर भी ले लेते हैं आगे, थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको, और क्या इंफॉर्मेशन है अभी देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑल्सो। जो बाकी इंफॉर्मेशन है उस पर चलते हैं। इसको थोड़ा सा और पुल कर लेते हैं नीचे। ठीक है जी, ओके, तो लेट्स गो फर्दर। Now they say the following additional information is known, all slots were full। सारे के सारे स्लॉट्स जो थे वो फुल थे। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अगर सारे के सारे स्लॉट्स वो कहता है मेरे फुल थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मेरे सारे स्लॉट्स फुल, 20 स्लॉट, हर एक फुल, हर एक एप्लीकेशन, हर एक स्लॉट में आते हैं 10 एप्लीकेशन। दैट मीन्स मेरे पास टोटल 200 एप्लीकेशंस आने वाली है। दैट इज व्हाट आई एम श्योर अबाउट। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट थिंग दे से द नंबर ऑफ यूएस एप्लीकेशन वाज सेम इन ऑल द स्लॉट। तो यूएस में हर बार जितनी भी आप एप्लीकेशन लगाओगे हर एक स्लॉट में, 20 स्लॉट है, हर बार सेम आने वाली है। द सेम वाज ट्रू फॉर द अदर 3 कैटेगरीज आल्सो। तो बाकी सबके लिए भी सेम आने वाला है। 50% ऑफ एप्लीकेशन यूएस से है, मतलब यूएस से आपके पास 100 एप्लीकेशन आने वाली है। इन टोटल यूएस से आपके पास 100 एप्लीकेशन आएंगी। ठीक है जी। नाउ इन 100 एप्लीकेशन के अंदर बाकी बची 100 वो यूके, शेनेगन और अदर से आनी है। अब एक बात इन्होंने मुझे बताई है, शेनेगन से आई, वी और एन 3 लोग आने हैं, मतलब हर एक स्लॉट में 3 लोग आएंगे। दैट मींस जो शेनेगन से आएंगे 3 इंटू 20, 60 लोग आएंगे आपके शेनेगन से। और जो अदर्स है उसमें 2 ही लोग आए हैं, तो हर एक स्लॉट में 2 ही लोग आएंगे। कि कहां से लग रहा है पता? ये मेरा सेकंड जो पॉइंट है ये मुझे बता रहा है। पहला बताया ऑल स्लॉट्स फुल थे, तो 200 एप्लीकेशन है, 20 इंटू 10। फिर बताया यूएस की हर बार सेम है, और सेम इज ट्रू फॉर अदर 3 कैटेगरीज। तो 200 में से जितनी भी एप्लीकेशन आप लगाने वाले हो हर एक स्लॉट में बराबर सबको देनी है। एप्लीकेशन यूएस की 50% है, 200 का हाफ हो गया 100। तो मतलब हर एक स्लॉट में 5 एप्लीकेशन आने वाली है। द सेम वाज ट्रू फॉर अदर 3 कैटेगरीज, मतलब 3 एप्लीकेशन अगर शेनेगन में आई है तो हर बार 3 ही आएंगी। 20 इंटू 3 60, ऐसे अदर्स में 40। 20 स्लॉट्स, हर एक एप्लीकेशन, हर एक स्लॉट में 2 लोग आ रहे हैं, लाइक यहां पर एम और ओ आए हैं, तो टोटल हो गया 100। मतलब यूके की उस दिन एक भी एप्लीकेशन नहीं आई है। इज दैट क्लियर? नाउ दिस पॉइंट इज डन। नाउ कहते हैं ऑल एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट इरा, विजय, नंदिनी अराइव्ड एट टाइम। ठीक है जी। विजय वाज कॉल्ड एट अ काउंटर एट 9:25। That is all information I have. तो let's make some space to solve it now. अब solve करना है इसको, तो let's solve this। इस information की मुझे जरूरत नहीं है, इसका काम हो गया। चलो, this is done। And now the next information which I have to use। पहला क्वेश्चन आया आपके पास, how many UK application were scheduled on that day। तो पहला क्वेश्चन मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी है, हल्का सा उसको मैनिपुलेट किया, एंड यू इजिली गेट द आंसर। कि जो आपका आंसर आ गया वो सीधा सीधा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 0। तो हाउ मेनी यूके एप्लीकेशन वर शेड्यूल्ड? द आंसर इज 0।
पहला क्वेश्चन मेरा डन, क्वाइट इजी इट वाज, राइट? तो लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं वो क्या क्वेश्चन था, बिकॉज अभी इसको और आगे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मेरे पास जो थी, द लास्ट वन, कि विजय वाज कॉल्ड एट काउंटर एट 9:25, तो उसको लिख लेते हैं कि विजय को जो बुलाया गया काउंटर पे वो 9:25 पे बुलाया गया था। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इसको रब कर देते हैं, आपको इजी रहेगा देखने में। लेट्स रब दिस। Now the second question which we have, that says, what is the maximum possible value of total time in minutes nearest to its integer value required to process all application others category? Now others category की बात करनी है मेरे को। Now others category में क्या हो रहा है, let's understand that also, उसको भी समझ लेते हैं। Now others category कहती है कि मुझे कितना टाइम लगना चाहिए मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, देखो 10 मिनट और 10 मिनट तो मुझे मालूम है, ठीक है। अब यहां से मुझे निकालना है कि शैनिगन पे कितना एप्लीकेशन पे टाइम लगता है और अदर्स पे कितना टाइम लगता है। हाउ विल आई फाइंड आउट? अब मेरे को मालूम है कि जो ये शैनिगन वीजा लगवाने 3 लोग आए थे, आई, वी और एन। अब पहला स्लॉट शुरू हुआ 9 तो 3 लोग आए होंगे, और इन्होंने एक इंफॉर्मेशन मुझे दी थी कि 6 स्लॉट्स 9:20 पे बिजी थे। अब देखो, अगर मुझे मालूम है कि पहले यूएस वाले एप्लीकेशन में काउंटर पे 4 काउंटर्स हैं, तो अगर यहां पर 5 एप्लीकेशन आई हैं, तो फर्स्ट काउंटर पे 1, सेकंड पे 1, थर्ड पे 1, फोर्थ पे 1, ये 9-10 पे चले गए होंगे, राइट? जब 9-10 पे चले गए, तो जो फिफ्थ एप्लीकेंट है वो काउंटर नंबर 1 पे लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी 3 काउंटर मेरे खाली है। जैसे 9:15 हुआ, 5 लोग और एंट्री कर गए अंदर। 5 लोग और एंट्री कर गए, तो उन तीनों, उन्होंने इनको भी बिजी कर दिया, ठीक है। अब ये चलेंगे 9:25 तक, तो ये बिजी है। जिन्होंने मेरे को बोला था कि वहां पर 6 आपके पास जब 9:20 पे एंटर करता है, when they entered exactly 6 out of 10 काउंटर्स वर ईदर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, या तो कर रहे थे, तो 3 ये वाले थे, और had finished processing the one and ready to start processing the next, और नेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए तैयार थे। अब इसका भी 9:20 पे खत्म हो गया था, ठीक है जी। तो 9:20 के पे चारों के चारों ऑक्यूपाइड है, यहां पे तो कोई था ही नहीं, खाली पड़े हैं। अब शैनिगन वीजा में क्या हुआ, शैनिगन वीजा में अगर 3 लोग आए थे 1, 2 एंड 3, तो उन 3 लोगों ने किया क्या, पहला 9 में लगा 9 दूसरा भी लग गया, 2 ही काउंटर है, तीसरा वेट कर रहा है। 9:15 पे इन बच्चों ने, तीनों ने आना था, आईवी और एन, तीनों नहीं आए। इस समय भी अब क्या काउंटर खाली था, बिजी था, नहीं पता। 9:25 पे विजय की बारी आ जाती है, और इरा के बाद विजय का नंबर आता है, मतलब विजय से पहले इरा ऑलरेडी जा चुकी है काउंटर के ऊपर। दैट मींस 9:25 पे 3 पहले, 4 5, पांचवे कैंडिडेट, पांचवे एप्लीकेंट का नंबर आता है 9:25 पे, 25 मिनट्स के बाद। अगर 25 मिनट्स के बाद पांचवे कैंडिडेट का नंबर आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब बड़ा छोटा सा है कि 25 मिनट में 4 एप्लीकेशन प्रोसेस हुई है, 2 काउंटर है, तो एक काउंटर पे 2 एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी है इन 25 मिनट, मतलब 12.5 मिनट में एक एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। तो जो मेरा थर्ड काउंटर है शैनिगन वाला, यहां पर जो टाइम लगता है वो लगता है 12.5 मिनट्स, यहां पे 12.5 मिनट्स लगने वाले, ठीक। नाउ अब वापस उसी बात पे आ जाता हूं कि 6 बिजी थे, अब 4 तो ये बिजी है 9:20 पे। अब इरा तो चली गई, इट वॉज रेडी, 5 वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस,
और छठा में लाइन में लगा हुआ था वो भी बिजी था, 6 के 6 बिजी हो गए, मतलब ये वाले दोनों और ये वाले दोनों बिल्कुल खाली थे, देवर एम्प्टी। अगर ये 9:20 पे एम्प्टी हो गया, 9 o'clock वाले आए दो लोग, वो फ्री होके चले गए, 9:15 वाले आए वो भी चले गए, एंड दे आर नॉट हैविंग एनीवन एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज यहां पर दो ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग हर स्लॉट के अंदर। तो ये दो यूके वाले एम्प्टी, ये दो एम्प्टी, मतलब 10 मिनट के अंदर दो एप्लीकेशन गई, सॉरी 5 मिनट के अंदर दो एप्लीकेशन गई, दो काउंटर्स हैं, मतलब हर एक काउंटर ने 5-5 मिनट लगाए। तो जो अदर्स वाली है, मतलब वो हमारी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो एक एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देते हैं। वहां से मेरा आंसर आ जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल टाइम इन मिनट्स नियरेस्ट टू इंटीजर वैल्यू रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ऑल एप्लीकेशन। 5 मिनट अगर एक एप्लीकेशन में लगते हैं, 40 एप्लीकेशन लगनी है, इजी कैलकुलेशन 14 into 5, दैट मींस 200 मिनट, 200 मिनट विल बी टेकन एंड आई विल बी डन। मेरा आंसर हो गया, क्वाइट इजी क्वेश्चन, डुएबल था, सिर्फ हाँ लेंथी था, इट वाज क्वाइट लेंथी क्वेश्चन, इसको समझना टाइम लग सकता था, बट ऐसा नहीं था डुएबल नहीं था, इट वाज क्वाइट डुएबल इन द एग्जाम। पहली पजल पे 15 मिनट मैंने आपको समझाया, बातें की, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो 5 6 7 मिनट, सेकंड पजल भी सेम 14-15 मिनट्स की वीडियो है, दैट इज आल्सो टेकिंग गोना 6-7 मिनट्स। तो 12 से 15 मिनट के अंदर मैं कहता हूं कोई अच्छा बच्चा है वो दो पजल्स निकाल लेगा। थर्ड पजल भी इजी है, इसको भी आप 7-8 मिनट में निकाल लोगे, मैं कहता हूं 10 मिनट में निकाल लिया, 25 मिनट में 3 पजल्स कैट के LRDI स्लॉट 1 की निकाली जा सकती थी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैड, क्वेश्चन नंबर 3। The question number 3 says, which of the following is the closest to the time when Nandini's application process got over? अब नंदिनी को पहले ढूंढते हैं, नंदिनी कहां है, नंदिनी कहां है जी, लेट्स फाइंड इट आउट। नंदिनी थी हमारी तो नंदिनी कहां है, नंदिनी है यहां पर, here we have नंदिनी। closest to the time when Nandini's application process got over, नंदिनी की प्रोसेस जब ओवर हो जाएगी। अब देखो नंदिनी लगी हुई है शैनिगन वीजा के लिए, 12.5 मिनट लगते हैं, शी इज द 6th वन, ठीक है, शी इज द 6th वन। ये लोग आए हैं 9:20 पे, ठीक है। अब 9:15 पे मेरा जो पहला स्लॉट खत्म था, सेकंड स्लॉट में इन तीनों की बारी थी, टाइम पे नहीं आए, तो एक काउंटर खाली था, ईरा चली गई 9:20 पे, दूसरा काउंटर 9:25 पे खाली हुआ, वो चला गया, डन। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर पे जो ईरा यहां लगी है 9:20 पे, वो 9:32.5 12.5 मिनट के बाद फ्री हो गई, तो नंदिनी लाइन में लग गई। अब 32.5 9:32.5 9 hour 32 minute 30 सेकेंड के 12.5 मिनट के बाद 12.5 मिनट्स के बाद 9:45 शी इज ऑल्सो फ्री। तो मेरा आंसर बड़ा सिंपल सा हो गया, आई कैन इजिली फाइंड आउट माई आंसर अगेन, कि मेरा जो आंसर है वो 9:45, ऑप्शन नंबर 4। ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अब देखो पजल इज नॉट टफ, पजल टफ नहीं थी, इट वॉज क्वाइट लेंथी, आई एग्री टू दैट, थोड़ी सी लेंथी थी, थोड़ा टाइम टेकन हो सकता था, बट किसी बच्चे ने अगर ढंग से प्रैक्टिस की हुई है तो मुझे नहीं लगता कि इस पजल में ज्यादा टाइम लगना चाहिए था, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ, द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव। नाउ द क्वेश्चन के सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, अब देखो स्टेटमेंट कौन सी फॉल्स है, लेट्स फाइंड इट आउट। पहली स्टेटमेंट कहती है द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ उस्मान, उस्मान कहां है, उस्मान यहां पर है, लास्ट जो अदर काउंटर है, दो काउंटर थे वहां पे लगा हुआ है, 5 मिनट लगते हैं इस काउंटर पे से, 5 मिनट। एप्लीकेशन ऑफ उस्मान वाज कंप्लीटेड बिफोर विजय, हमें बताना है कौन सी फॉल्स थी, वी हैव टू टेल व्हिच ऑफ देम वाज फॉल्स, हमें फॉल्स बताना है, ट्रू नहीं बताना, ध्यान रखना। एप्लीकेशन प्रोसेस उस्मान, उस्मान का टाइम है 9:30 बजे आने का, 9:35 पे वो फ्री है, तो उस्मान जो है वो 9:35 पे फ्री हो जाएगा। अब वो कहता है क्या वो विजय से पहले कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि विजय तो 9:25 शैनिगन वाले काउंटर पे है, वहां लगने हैं 12.5 मिनट 12.5 मिनट्स, 9:20 के बाद वो 9:37 मिनट्स और 30 सेकंड में फ्री होने वाला है। दैट मींस दिस इज रॉन्ग, ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है।
और उस्मान जो है वो होगा फ्री 9:40 पे। उस्मान वॉज कंप्लीटेड, तो उस्मान खत्म होगा 9:35 पे और विजय होगा 9:37.5। तो दिस इज ट्रू, मैं ये आंसर नहीं है मेरा। फिर कहते हैं महिरा का बिफोर नंदिनी खत्म हो गया। अब नंदिनी का हमें पता है पिछले क्वेश्चन में किया 9:45 पे खत्म हुआ, तो क्या महिरा का उससे पहले खत्म हुआ? हाँ जी बिल्कुल हुआ, महिरा भी 9:35 पे फ्री थी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये ट्रू इंफॉर्मेशन है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ उस्मान वाज कंप्लीट बिफोर 9:45, यस इट वाज 9:35, वो भी खत्म हो चुका था, तो लास्ट ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ महिरा स्टार्टेड आफ्टर नंदिनी, महिरा का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 9:30 पे, नंदिनी का प्रोसेस शुरू होना है 9:32.5 पे, दैट मींस दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। तो जो मेरा फोर्थ ऑप्शन था वो मेरा राइट आंसर है और फॉल्स इंफॉर्मेशन है। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब देखो अगेन आई एम सेइंग हमारा एक बैच शुरू हो रहा है कैट का ऑलरेडी, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद दैट। अगर आप में से कोई भी हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, दे कैन गेट इन टच विद अस, नंबर्स आपके सामने है नीचे डिस्क्रिप्शन में। मोर ओवर एक और चीज है, हम जो अपना ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं वो बैच हम शुरू कर रहे हैं शाम के टाइम, मतलब लेट इवनिंग में। तो लेट इवनिंग व्हेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग 6 और 7, आई एम सेइंग अराउंड 8:30। तो वी गोना स्टार्ट दैट एट 8:30। 8:30 का मतलब आप समझो जब आप लोग अपने बिजनेस रूटीन हैं, आपके जॉब्स हैं, अगर आप पढ़ते हो, अगर आप घर में हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, आप फ्री होते हो, तो आप उस समय घंटा 1.5 घंटा डेली क्लास लो, उसके डाउट्स लो, एंड वी कैन गो अहेड विद आवर प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन टफ नहीं है, इट इज क्वाइट इजी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और मैंने आपको रास्ता ही बता दिया, इन द इवनिंग, लेट इवनिंग यू गाइस कैन ज्वाइन अस। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इट सेज व्हाट डिड द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है, when did the application processing for all US applicants got over? Now this question was a bit lengthy, I'll say. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर था, दिस क्वेश्चन वाज अ लेंथी, नो डाउट अबाउट। अब कैसे था, करना क्या था? वेरी सिंपल इट वाज। यूएस एप्लीकेंट्स को कितने बजे फ्री होने वाले, ठीक है जी। अब यूएस एप्लीकेंट्स कितने बजे फ्री होंगे, उनकी है 100 एप्लीकेशंस, 10 मिनट लगते हैं, मतलब 1000 मिनट्स तो लगने ही लगने, 1000 मिनट्स तो लगने ही लगने। लेकिन क्या वो बैक टू बैक एप्लीकेशन ले रहे? नहीं ले रहे, क्योंकि जब 9 o'clock का स्लॉट शुरू हुआ, एप्लीकेंट 1 2 3 4 लाइन में लग गए, दिस वॉज एट 9 o'clock, ये 9 o'clock हो गया ऐसा का। तो एप्लीकेंट्स 9 o'clock आए हैं, 1 2 3 4 स्लॉट में लगे हुए हैं। एट 9:10 क्या होता है, 9:10 पे फर्स्ट वाला सारे फ्री हो गए, एप्लीकेंट नंबर 5 यहां लग गया। अब यहां पे कोई नहीं है, ना सेकंड काउंटर पे कोई है, ना थर्ड काउंटर पे कोई है, ना फोर्थ काउंटर पे कोई है। कब तक नहीं है? अगले 5 मिनट तक कोई नहीं है, बिकॉज 9:15 पे 5 लोग और आएंगे। दैट मींस पहले स्लॉट में ही मेरे पास 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, क्योंकि तीनों काउंटर पे 5 5 5 5 into 3 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब 9:15 पे और लोग आ गए, अब ये काउंटर बिजी है, नेक्स्ट काउंटर पे 6 7 तो 8 चला गया। अब दो लोग फ्री है, दो लोग भी वेट कर रहे हैं, फ्री कोई नहीं हुआ। अब 9:20 पे क्या होगा, 9:20 पे ये वाला काउंटर फ्री हो जाएगा, 9th वाला बंदा यहां लग जाएगा, अभी भी एक बंदा वेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा 9:25 पे, 9:25 पे ये तीनों काउंटर फ्री हो जाएंगे, 6 7 और 8 वाला, तो 10th वाला बंदा यहां लग जाएगा और ये दोनों काउंटर फ्री हो गए 9:30 तक, मतलब 5 मिनट फिर लगे, मतलब यहां पर भी 10 मिनट। दैट मींस 15 के बाद 10 मिनट अगले उस स्लॉट पे भी लगने वाले हैं। अब आप सोचो 9:30 पे क्या होगा, 9:30 पे 5 लोग और आने वाले हैं, 9:30 पे 5 लोग और आएंगे और मेरा एक काउंटर बिजी है, 4 लोग लग जाएंगे, ठीक है। लेट्स डू दैट, उसको भी कर लेते हैं। लेट मी जस्ट रब दिस फॉर यू गाइस। यहां तक समझ आ गया होगा आई बिलीव। नाउ व्हाट डू वी हैव, ओके, नाउ जो लास्ट 9:25 के बाद टाइम हुआ 9:30 का, 9:30 पे मेरा ये वाला जो 9:20 पे काउंटर ऑक्यूपाई हुआ था वो फ्री हो गया, तो 9:30 5 लोग और आ गए,
11th पर्सन वेंट ऑन द फर्स्ट काउंटर, जो 11th बंदा है। अब 9:30 पे ये वाले काउंटर फ्री नहीं है अभी, ये दो फ्री थे, तो 12th यहां लग गया, 13th यहां लग गया, ये वाला अभी भी इस पे वर्किंग चल रही है, यहां पर ये 10th वाला लगा हुआ है अभी तक। अब ये 10th वाला फ्री हो जाएगा 9:35 पे, एट 9:35 ही गॉट फ्री, तो यहां पे लग गया 14th। अभी भी सारे बिजी हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, सारे बिजी चल रहे हैं। अब 9:40 पे क्या होगा, एट 9:40 एट 9:40 ये जो मेरा काउंटर है 11th ये फ्री हो गया, 15th यहां आगे लग गया, 14th ऑलरेडी काम चल रहा है। अब ये 12th और 13th फिर फ्री हो गए, क्योंकि इनका भी काम खत्म हो गया। अब 9:45 तक ये भी फ्री रहने वाले हैं, मतलब 5 and 5 10 मिनट्स यहां भी लगेंगे। तो ऐसे ही 10 मिनट्स जो हैं ये 19 बार और लगने वाले हैं, क्योंकि 20 स्लॉट्स है, पहले स्लॉट में 15 मिनट एक्स्ट्रा और उसके बाद अगले 19 स्लॉट्स में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, मतलब आपका 190 and 15 दैट इज 205, टोटल 1205 मिनट लगने वाले हैं। और आपके पास टाइम कितना है, टाइम आपके पास है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, यही लिखा गया था स्टार्टिंग में। तो 5 घंटे हैं, 5 आवर्स में हाउ मेनी मिनट्स यू हैव, इन 5 आवर्स यू हैव 300 मिनट्स, 300 मिनट है। 300 मिनट्स जो आपके पास है इन 5 आवर्स के अंदर, अब उसके अंदर हर एक काउंटर में 300 मिनट लगे, 300 300 300 300 1200 मिनट खत्म हो गए। एक एप्लीकेशन अभी भी चल रही है बिकॉज ये 5 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। जो मेरा टाइम खत्म होगा 2:05 पर मेरा ये वाला एप्लीकेशन, यूएस वाले सारे एप्लीकेशन चले जाएंगे, मुझे ओवर टाइम बैठना पड़ेगा 5 मिनट एक्स्ट्रा। मेरा ये भी आंसर खत्म हो गया। आई होप पजल वाज क्वाइट इजी, कोई टफ नहीं थी, आप लोगों को बड़े आराम से समझ आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही है, टुमारो आई विल गेट बैक टू यू विद द नेक्स्ट पजल आल्सो ऑफ कैट 2023 स्लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।